આર્થરાઇટિસ અને આ કોરોના પછી તો વધારે વધી રહ્યું છે. આમ તો 80% લોકો દર્દથી પીડાય છે. અને એનું સોલ્યુશન શું? તો આજે બહુ જ સટીક ઉપાય બતાવી રહ્યા છે. જો ત્યાં મૂકેલું છે, આ છે ને, આ ચટણી જેવી તમને લાગે ને, એને પોટલી બનાવવામાં આવી છે. અને આ જે તેલ મૂકવામાં આવ્યા છે ત્યાં, આ પેસ્ટ શાનું છે અને આ તેલ પીડાંતક આ બધું કેમ બનાવવાનું? આ જે છે ને, એરંડના પાંદડા, આખાના પાંદડા, નિર્ગુંડીના પાંદડા, મોરિંગાના પાંદડા, પછી આ જે એને કહેવાય અમરબેલ, અને એમાં થોડુંક લસણ, આદુ, હળદર, આ બધું મેળવીને આ પોટલી બનાવીએ અને એનાથી આ શેક કરીએ છીએ. આ બધું ગરમ ગરમ તેલ, પીળાંતક તેલ, એમાં આ પોટલી, આનાથી મસાજ કરીએ ને તો આખું દુખાવો આમ દૂર થાય. આ તો એક ઉપાય છે. અને બીજો ઉપાય, આ તો એક ઉપાય થયો. અને આ બધા તેલ છે ને, તો આ તેલને સારી રીતે પાક કરીને ઔષધિઓના તેલમાં આ બતાવવાનો છે આજે. પછી એની મસાજ કરીએ છીએ. અને એ કરતાં કરતાં જ ભસ્ત્રિકા ચાલુ રાખો. ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ કરી લો. લેટે લેટે અનુલોમ વિલોમ. તો મસાજ પણ ચાલુ છે, યોગ પણ ચાલુ છે. એનાથી દર્દ દુખાવો દૂર થાય. અને આ નાનકડા ઉપાયો કરીને અને આ પોટલી મસાજ. પોટલી મસાજમાં શું કરવાનો? પોટલી મસાજમાં જે રેત છે, બાલુકા, અને આમાં બાલુકામાં પછી અજમા, મેથી એ નાખીને અને એને શેકવામાં આવે. અને એનાથી પછી આ સાથે સાથે અનુલોમ વિલોમ થઈ રહ્યું છે, કપાલભાતિ થઈ રહી છે, અને આ પોટલી મસાજ થઈ રહી છે. એનાથી આખું સોજો દૂર થઈ જાય, દુખાવા દૂર થઈ જાય. આવી નાનકડી ક્રિયાઓ કરીને આ જુઓ, શરીરમાં આ ગરમ તેલ છે, આ ગ્રીવા ઉપર એને ગ્રીવા બસ્તી કહેવાય, આ કટી ઉપર એને કટી બસ્તી કહેવાય. હા, આ ગરમ નાખવાનું. જ્યારે આ ઠંડો પડી જાય એને લઈ લેવાનો, પછી ત્યાં નાખી દેવાનું, અને પછી એને અહીંયા નાખવાનું. આમ धार बना के डाला करो बेटा, ऐसे पूरा. वो यहाँ से उठाओ, यहीं डालो, देखो ऐसे, यहाँ नीचे से डालो, उठाओ, फिर धार बना के डालो. तो उससे और ज़्यादा माने पेशेंट को भी फायदा ज़्यादा होता है. और गरम तेल पड़े न धीमे धीमे आ धार थी. हाँ, અને આ એક ખાસ ઉપાય છે. આ તો ડ્રાય કફિંગ છે અને આ બ્લડવાળું છે. આમાં ટાંચા કરીને અંદરથી, અને આમાં આ તો ડ્રાય છે, અને આમાં આ લોહી કાઢી નાખ્યું છે. इसको हटा लो बेटा. अब आ ઉતારવામાં આવે ને ત્યારે આટલું આ બ્લડ આવે. એમાં વધારે નહીં, થોડુંક કરવાનું હોય. અને એ તો બધાને આમ લાગે કે આ શું થઈ રહ્યું છે મારી સાથે. એમાં કોઈ વધારે કષ્ટ નથી થતો. અને તરત એમાં હળદર લગાવવામાં આવે પછી, અને સારું થઈ જાય. આ હળદર છે એ લીચમાં, આ ટર્મરિક, આ લીચમાં આ હળદર લગાવીને આમ, અને અહીંયા આ જ લગાવવામાં આવે, તરત ફાયદો થઈ જાય. આમાં હળદર લગાવી દીધું અને તરત આમાં ફાયદો થઈ જાય. क्या नाम है आपका? अभिषेक गुप्ता. अभिषेक कहाँ से बेटा? गोरखपुर से. हाँ, गोरखपुर बहुत चर्चा में आजकल. हाँ, गोरखनाथजीની પુણ્યભૂમિ છે, એની યોગ ભૂમિ છે. આ જો આ છોકરાને દુખાવો હતું, ઘૂંટણમાં દુખાવો, પગમાં દુખાવો હોય, એડીમાં દુખાવો હોય, કોઈ પણ ખંભામાં દુખાવો હોય, જ્યાં દુખાવો હોય ને ત્યાં લગાવો, તરત ફાયદો થાય. આમ જો આ જડી થઈ જાય પીવીને, લોહી પીવીને, અને તરત આ બધું દુખાવો આ લગાવે અને તરત મટી જાય. આવું છે. હે રામબાણ અચૂક બ્રહ્માસ્ત્રનું કામ કરે. ઘૂંટણ વધારે દુખતા હોય તો આ ગરમ તેલ આ ઘૂંટણમાં આમ નાખવાનું, પછી આમ લઈ લેવાનું, ગરમ નાખવાનું, લઈ લેવાનું. અનુલોમ વિલોમ કરો, લેટે ના, અનુલોમ વિલોમ આરામથી. આ ઉપાયો પણ થાય અને સાથે સાથે અનુલોમ વિલોમ થઈ રહી છે, ભસ્ત્રિકા થઈ રહી છે, કપાલભાતિ થઈ રહી છે. આ મજાનું કામ છે. એક સાથે બધું આ તો જાનો બસ્તી હોય કે કટી બસ્તી હોય કે ગ્રીવા બસ્તી હોય ને, આખી કમર દુખતી હોય ને, તો આ જુઓ
આખી કમર દુખે તો આ કરવાનું. અપ્રતિમ છે, અપ્રતિમ અપ્રતિમ. એનાથી તો આખા કમરનું દુખાવો ગરદનથી માંડીને કમર સુધી એ મટી જાય. અને આ તો આવી વિદ્યાઓ છે જે પહેલે લોકોને મળતી જ નહીં હતી. આ ચિકિત્સાઓ આ છોકરાને નાની ઉંમરમાં થાય, આ ઘૂંટણમાં દુખાવો થાય, કમરમાં દુખાવો થાય તો આ કરી લેવાનું. અને નહીંતર આખા શરીરમાં સ્ટીમ આપવાની હોય તો આ કરી લેવાનું. આમાં અંદરથી સ્ટીમ આપવામાં આવે. તો આ બધા ઉપાયો કરીને રક્તમોક્ષણ બસ્તી એ તો અડધું ઉપાય ગણાય આમ આયુર્વેદમાં. અને આ છે બસ્તી. આમાં આ પીડાંતક ક્વાથમાં, પીડાંતક ક્વાથ બહાર બતાવીશ તમને. આ બધા જે પીડાનાશક ઔષધિઓ છે, પીડાંતક ક્વાથ કરીને અને એને બસ્તી આપવામાં આવે, એને એનીમાં આપવામાં આવે. એ એનેમામાં 100-150 ગ્રામ આ પીડાંતક ક્વાથ લઈને આમાં પીડાંતક વટી છે, અમારી વિષેન્દુક વટી છે, ચંદ્રપ્રભા, ઓર્થોગ્રીડ છે, આ બધું નાખવામાં આવે અને બધા જ દર્દોમાં એનો ફાયદો થાય. આ બે ઉપાયો વધારે તમને. આ તો એક તો પીડાંતક ક્વાથ. આ પીડાંતક ક્વાથને તો શું કરવાનું, એને ઉકાળીને અને 4-5 કિલો પાણીમાં ઉકાળી લો. જ્યારે 2 કિલો બાકી રહે ત્યારે એને આખા દિવસ થોડું થોડું કરીને પી લો. એક જ દિવસમાં ફાયદો થાય. એને કન્ટિન્યુઅસ પીજો. આ તો વાત રોગોમાં પીડાંતક ક્વાથ, કફ રોગોમાં દિવ્ય પેય, અને જેને બહુ જ એસિડિટી હોય તો એમાં વીટગ્રાસ, એલોવેરા અને દૂધીનું જ્યુસ. આ 3 વાત પિત્ત કફના પ્રશમન માટે રામબાણ છે. આ જુઓ, આ બધી ઔષધિઓ જે તમને અમે બતાવી એનો જ એને ખાંડીને ઇમામ દસ્તામાં એમાં હળદર, આદુ, લસણ અને બધું આવું ખાંડીને અને એમાં મૂકી દીધું. તિલનું તેલ, એમાં એલોવેરા પણ નાખી દીધો. આ એલોવેરાના પલ્પ છે આ. અને આ બધું આવું તેલ તૈયાર થઈ જાય. આ દુખાવા માટે અપ્રતિમ છે, રામબાણ છે. અને આ બધું જે કરતા હોય પછી એને ક્યાં દુખાવો બાકી રહે, પછી આ પીડાંતક તેલ લેવાની જરૂરત નહીં પડે. એના લેપમાં માટીનો લેપ, એલોવેરા અને આ ગુગ્ગળ, સલાઈ ગુગ્ગળ એ લગાવી દઈએ તો એનાથી આખો દુખાવો દૂર થાય. તો આ તો ઉપાયો થયા જે અમે વર્ષોથી બતાવી રહ્યા છીએ. અને લોકોને આ કરીને શું ફાયદો થયો એ શુભેન્દુથી આપણે શરૂઆત કરીએ. ફક્ત તમે દરરોજ તમે પ્રાણાયામ કરો, સૂક્ષ્મ વ્યાયામ કરો અને નાનકડા ઉપાયો, ઓર્થોગ્રીડ છે, પીડાનિલ ગોલ્ડ છે, ઓર્થોગ્રીડ જમ્યા પછી ચંદ્રપ્રભા, ગોક્ષરાદી, લાક્ષાદી, કેશોર ગુગ્ગળ, જે ગુગ્ગળ છે એ બધા જમ્યા પછી લઈ લો. ભૂખ્યા પેટે પીડાનિલ ગોલ્ડ લઈ લો કે બ્રેતવા, ચિંતામણી જેવા જે ઔષધિઓ છે, આ બધું કરીને મોટા રોગોને અમે મટાડ્યા છે. અને આ યજ્ઞ થેરાપી પણ वातेष्टि यज्ञ कराए. क्या क्या था बेटा बताना. स्वामी जी ओम. मेरा नाम शुभेंदु है, मैं जाजपुर से हूँ, उड़ीसा से. तो मेरा एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस था. 2011 में फर्स्ट डायग्नोसिस हुआ था HLA-B27 का. तो उसके बाद फिर चलना मुश्किल होता था और कमर में, पीठ में पूरा स्टिफनेस आ गया था. तो वो अभी ठीक है और जैसे कि मैं अभी बैठ पा रहा हूँ पूरा आराम से, और वज्रासन में, सुखासन में, और चलना भी ठीक ठाक है. तो यहाँ आए हुए मुझे 7 दिन हो गए और 7 दिन में मेरा चलना पूरा ठीक हो गया है लगभग. એન્કલોઝિંગ સ્પોલાઇટિસ ત્યારે સામાન્ય કહેલો બહુ મોટો રોગ હોય અને એને મટાડી નાખે અને 1-2 સપ્તાહમાં પ્રારંભિક અવસ્થામાં આવી જાવ, નહીતર બધું બગાડ કરીને આવે ને પછી એમ કરે સ્વામીજી તરત ઠીક કરી દો, આમાં તકલીફ થાય. તો તમને છે ને આ બધા ઉપાયો, હળદર, મેથી, સૌંઠ ઘરે લઈ લો, લસણ લઈ લો ભૂખ્યા પેટે, ગોધન અર્ક પી લો, પીડાંતક ક્વાથ પી લો, ગોખરૂનું પાણી જ પી લો, એનાથી જ આખું દુખાવો મટી જાય. નાનકડા ઉપાયો કરીને મોટી બીમારીઓને મટાડી શકીએ અને મટાડીને વેચ્યા છે. સૂક્ષ્મ એમ પ્રાણાયામ ફક્ત આટલું જ કરી લો. બધું આર્થરાઇટિસ, રોમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ, એન્કલોઝિંગ સ્પોલાઇટિસ, ફ્રોઝન શોલ્ડર, દર્દના ઘણા બધા આમ આ વિભાગ છે. એના આખું એક ફેમિલી છે દર્દ દુખાવાની. આખી ફેમિલી એ તો
हाँ, इसको देते हैं, पहले इस बेटी को देना। क्या क्या लाभ पाया है एक एक करके आपको। नानी उमરની આ 3 દીકરીઓ છે, બે પાછળ બેસી છે, शोभा ने अंगिका। पहले बड़ी छोटी उम्र वाले उससे शुरू करते हैं और बड़ी वालों तक जाते हैं। जी बेटा। हरिओम स्वामी जी। ओम बेटा। मेरा नाम रूपाली जुनेजा है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरे को 10 साल पहले सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस डिटेक्ट हुआ था, जो ओवर द पीरियड बढ़ता गया, जिसकी वजह से मेरा ये लेफ्ट हैंड है, ये ऑलमोस्ट चलना बंद ही हो गया था। मैं थाली भी नहीं उठा पाती थी इससे, और मेरा हाथ ऐसे था। मैं दिन में 3 से 4 पेन किलर्स पे थी, और वो पेन किलर्स खाते 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 ही ओवर द पीरियड मेरे दिमाग की नस भी कंप्रेस हो गई है। और मैं अपनी रिपोर्ट्स भी यहाँ लाई हूँ, जिसमें मेरा MRI CT स्कैन की मैं रिपोर्ट्स लाई हूँ, जिसमें एक्चुअली में डॉक्टर्स ने सिर्फ दवाइयों के अलावा कुछ नहीं लिखा था मेरे लिए। कमर में भी दर्द था, मैं बेड रिडन थी, बट यहाँ आए हुए 20 दिन हो गए हैं। मेरा हाथ बेड रिडन हो गई थी? मैं बेड रिडन थी ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम। मेरा हाथ बिल्कुल सीधा उठता है। यहाँ आके 20 दिन में मैंने पेन किलर नहीं ली, जबकि मैं लाई थी। तेरे को यार मैं लाई थी यहाँ पे पेन किलर, और अब मैंने ये पेन किलर पेन नहीं ली। किलर, स्टीरॉइड और बायोलॉजिकल, ये 3 बड़े खतरनाक हैं, और इसी को खाते रहते हैं अर्थराइटिस वाले। मेरी कमर में बहुत दर्द था, बट जो यहाँ पे बस्तियाँ वगैरह हुई हैं उससे मैं ठीक हूँ। मैं सुबह उठती थी तो मैं रोती थी कि मेरे दर्द होती थी इतनी, मेरी कमर नहीं उठती थी, कंधे नहीं उठते थे। बट अभी मैं एटलीस्ट 50% बिल्कुल ठीक, 50% क्या, एटलीस्ट 70-80% मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा सिर दर्द का रह गया, वो भी आई थिंक अभी मैं जाते जाते भी मैं हूँ हफ्ता 10 दिन और ठीक होके जाऊँगी यहाँ से। पूरा ही ठीक हो जाएगी बेटा। पूरा शरीर में ना दवाइयाँ खा खा करके ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पूरा नाड़ी तंत्र, पूरा हड्डी, मांसपेशियाँ, पाचन तंत्र, पेन किया सब गड़बड़ कर देते हैं पेन किलर, स्टीरॉइड और बायोलॉजिकल। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। मैंने दिल्ली में एलोपैथी मेडिसिन का ट्रीटमेंट लिया, दिल्ली के आयुर्वेदिक मेडिसिन का ट्रीटमेंट भी लिया है मैंने, उससे भी मुझे कभी आराम नहीं आया। जो आराम मुझे यहाँ की आयुर्वेदिक मेडिसिन से आया है, और सारी जो पंचकर्मा ट्रीटमेंट से आया है मुझे आराम। होता क्या है, लोग आयुर्वेद के नाम पर पता नहीं क्या क्या देते रहते हैं। आयुर्वेद में उसका क्या उपयोग करना है ये भी तो आना चाहिए। मैं बीमार ज़्यादा हुई थी वो वाली आयुर्वेदिक मेडिसिन खा के। अब कुछ लोग तो आयुर्वेद के नाम पर ही पेन किलर देते रहते हैं, स्टीरॉइड तक दे देते हैं पाउडर के अंदर। अब पाउडर के अंदर स्टीरॉइड दे दिया तो उससे तो फिर दिक्कत बढ़नी है। कोई नहीं बेटा, पीछे वाली बेटियों को देना। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। मैं शोभा, झारखंड पलामू जिले से। 3 साल पहले अर्थराइटिस हुआ था। मेरा हाथ सीधा नहीं होता था, और पैर में भी, घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द, और एंकल में स्टिफनेस आता था। मतलब उठने के बाद, सो के उठने के बाद मैं चल नहीं पाती थी, बस रोते रहती थी। मम्मी पकड़ पकड़ के सब जगह ले जाती थी। यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, चलने भी लगी हूँ, और ये सूजन था उंगली में ये भी ख़त्म हो गया, और सीधा भी हाथ होने लगा है। ये बड़ी बात है, हाँ? लेकिन इसमें महीना भर लग जाता है। इसलिए आज मैंने आह्वान किया था कि जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि पूरा शरीर ही बेकार हो गया, तो घर में पड़े पड़े सड़ने से क्या फ़ायदा। घरे घरे पड़े पड़े घर में कहराते रहते हैं, खुद दुखी होते रहते हैं, परिवार वालों को दुखी करते रहते हैं। अब माता पिता तो अत्यंत प्रीति करते अपने बच्चों से, लेकिन कई बार जो है परिवार वाले भी जब कोई 2, 4, 10 साल ऐसे ही पड़ा रहे तो बोझ मानने लगते हैं। क्या करें हम इसका। और यदि कई बार क्या होता है, वो जो गहरा प्रेम होता है ना, वो माता पिता का तो होता है। बेटियां ससुराल में जब लंबी बीमारी से ग्रसित हो जाएं अथवा दामाद बहुत लंबी बीमारी से ग्रसित हो जाए, तो ससुराल में और पीहर में मतलब एक अलग ही तरह का नेगेटिव वातावरण तैयार हो जाता है। ये क्या हो गया, हम किससे पल्ले पड़ गए, किसके पल्ले पड़ गए, और बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो ऐसे में लोग जो है इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए लोगों को लेकिन दिशा ही नहीं है। उल्टी उल्टी बातें सुनते रहते हैं। ये तो ज़िंदगी भर रहता है, ऐसा रहता है, वैसा रहता है, कभी ठीक नहीं होता है। फिर तुम बने किसके लिए हो, अपनी डॉक्टरी छोड़ो। मैं जहाँ जाती थी स्वामी जी, पटना दिखवाने जाती थी, वहाँ पे एकदम बोर्ड पे लिखा हुआ था, ये जिंदगी भर की बीमारी है, अगर जीना है तो दवा खाना ही है। जीना है तो दवा खाना है। सब बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की, स्किन की, सब जिंदगी भर दवा खाओ। क्यों खाओ भाई? बोर्ड के ऊपर चिपकाए हुए, बोर्ड पे लिखा हुआ है। जी। ये तो बड़ा जोरदार काम है। बोला बोर्ड पे लिखा हुआ है। चलो अगली गुड़िया को देना। अब ये छोटी छोटी उम्र की बेटियां दोनों, अब इनको 15, 16, 17 साल में ये प्रॉब्लम हो गई थी। अब तुम्हारी कितनी उम्र बेटा?
तो शोभा की 20 और अंगिका 17। 70। अब इनको 15-16 साल की उम्र में ये बीमारियां होगी तो 2-2 3-3 साल से बच्चे परेशान हैं। ओम स्वामी जी। ओम बाबू, मेरा नाम अंगिका है, मुझे 3 साल तुम कहाँ से हो बेटा? बिहार। दोनों ही बिहार से हो? ये झारखंड, कोई बात नहीं। हाँ। 3 साल से रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मेरा पूरा बॉडी काम अब ये करना ज्यादा बंद दर्द कर होता है ना दिया। हाथ पैरों में तो 100-200 बार कराते हैं भस्त्रिका के साथ। जी बेटा। पूरे बॉडी में सूजन रहता था, रेडनेस रहता था, मेरा एक एक कदम चलना मुश्किल था। घर में मम्मी पकड़ पकड़ के सारा काम करवाती थी और यहाँ पे आए हैं तो अब चलने लग गए हैं ये धीरे धीरे। धीरे पैर धीरे नहीं हाथ मुड़ता हाथ था। पैर है, मुड़ने लग गया। हाथ मुड़ने लग गया है, उंगली टेढ़ा हो गया था, पूरा सूजन आ गया था इसमें। हर श्रृंगार का काढ़ा पी पी के ठीक हुआ है सब। ये हार श्रृंगार का यहाँ फ्रेश काढ़ा देते हैं। हार श्रृंगार, निर्गुंडी, एलोवेरा, गिलो, ये फ्रेश पिलाते हैं, उससे एकदम से आदमी उभर जाता है। बातें छोटी छोटी हैं। डॉक्टर तो लाइफ टाइम का इंजेक्शन लिख दिया था कि ये भी असर नहीं करेगा तुमको, तो 1 लाख का महीने भर में इंजेक्शन लगेगा। वो बायोलॉजिकल होते हैं, एक एक इंजेक्शन ही 20-20 हज़ार का आता है, 25-25 हज़ार का, और हर सप्ताह एक लगाते हैं तो 1-1 लाख का खर्चा हो जाता है। इतने में तो तू घर परिवार जमीन सब बिकवा देती। लेकिन अब कुछ नहीं होगा बेटा तेरे को, अब रास्ता मिल गया, इसको छोड़ना नहीं। यहाँ पे आए थे तो पेन किलर खा के आए थे, 1 महीना से पेन किलर पे खड़े थे, अब 15 दिन से पेन किलर नहीं खाए हैं। 15 दिन से कोई पे नहीं मिला, ये अच्छी बात है। हाँ? बहुत हिम्मत वाली बेटी, आगे को देना। ये तो छोटे बच्चों की, इसको देना गुड्डी को। हाँ? ये गुड्डी जो है गुड्डी रहेगी बुढ़ी होने के बाद भी। ये गुड्डी पीछे से ले माइक। हाँ? पहले नाम रख देते थे गुड्डी गुड्डा, अब वो गुड्डी गुड्डा बुढ़े भी हो जाए तो भी गुड्डी गुड्डा ही है। तो ओम स्वामी जी। ओह, कहाँ से आई है गुड्डी? सीतापुर से। सीतापुर से। क्या क्या था तेरे को? हमारे ये अर्थराइटिस है, इसमें दर्द था, इसमें सूजन, इसमें सूजन, और ये जकड़ जाते थे स्वामी जी। ये पूरा हाथ पैर सब जकड़ जाता था। हाँ, सुबह तो बहुत मुश्किल से बहुत देर उठ के खड़े होते तब चल पाते थे। अब क्या हाल है? अब स्वामी जी बहुत दर्द, 50% तो ठीक है, अब दर्द बहुत। 50% ठीक कर लिया? हाँ। कितने दिन हुए हैं? 8 दिन हुए हैं, कल स्वामी जी जाने को है। 10 दिन का कराया था। तो जब पूरा ठीक करके चली जा, फिर घर लेके जाएगी, फिर बढ़ाएगी, तो 10-15 दिन और रुक जा गुड्डी। तो पूरी ठीक हो जाएगी। चलो, अब ये कितने साल से था तेरे को? 25 साल से था गुड्डी को। उम्र कितनी तेरी? हमारी 55 हुई। तो 25-30 साल की उम्र में हो गया था। ये माताओं बहनों को अर्थराइटिस बहुत होता है। चलो ठीक हो स्वामी जाएगी। जी जैसे कुछ ऐसे कुछ लग जाता था, बहुत तेजी से चोट दर्द लगती होता थी। था। हाँ बहुत। चलो बटरफ्लाई कर लो। अब देखो एक बात सुन लो सबकी सब बहनों, ये अर्थराइटिस तुम्हारी माने स्त्री जाति को बहुत ज़्यादा होता है। अगली को देने, विजय लक्ष्मी को। हाँ ओम स्वामी जी। ओम। मैं कर्नाटक से आई हूँ, कर्नाटक शाहबाद के गांव से आई हूँ। मुझे 2005 से दवाइयाँ ले रही थी मैं। हाँ। और ये लॉकडाउन के अंदर में मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गया था। 2 साल से पैर में सूजन वगैरह बहुत थी मेरे को, हाथ पांव पूरे ऐसे टेढ़े हो गए थे। बच्चे गोद में उठा उठा के लेके जाते थे मुझे। लेकिन अभी यहाँ मुझे आके 8 दिन में ही फ़र्क हो गया स्वामी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की दवाइयों से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। घर पे भी मैं आप हाँ, टेढ़े मेढ़े होने लग गए थे। हाँ, अंगुलियाँ पूरी टेढ़ी हो गई थी स्वामी जी। ऐसे थोड़ा भी धक्का लगता था, बहुत दर्द होता था पैर में मुझे, हाथ में, पैर में, घुटने के अंदर में। पहले तो पाँव मेरा ऐसे भी नहीं होता था, ये घुटना पूरा ऐसे बहुत सूजा हुआ था, ये वाला लेफ्ट वाला। हाँ, आके पूरी सूजन उतर गई है स्वामी जी। अब मैं आराम से फोल्ड करके बैठ सकती हूँ। अब ये चीजें नहीं तो ऐसा लगता है जिंदगी भर इसको कैसे जिएंगे, ऐसे इन्हीं के साथ जीना। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि पता नहीं मैं जिंदगी नरक हो गई है पूरी। चल आशीर्वाद आगे देना। हाँ। ओम स्वामी जी। मैं राजस्थान से हूँ, मेरा नाम ममता कंवर है, राजस्थान चित्तौड़गढ़ से। मेरे हिप्स और सर्वाइकल पेन था और मैं 10 मिनट भी नहीं बैठ सकती थी, और अभी आधे पौन घंटे से बैठी हूँ आराम से। ये हालात थे। अगली को देना। ओम स्वामी जी। मैं सौ उमा रावल मध्य प्रदेश उज्जैन से आई हूँ। मुझे सर्वाइकल बताया था डॉक्टर ने, और मुझे घूमने में भी दिक्कत आती थी, लेकिन अब मेरा हाथ भी उठ जाता है और मैं वज्रासन में भी बैठ पाती हूँ। पहले वज्रासन में नहीं बैठ पाती थी, अब मैं आराम से वज्रासन कर लेती हूँ। और आपका मैं गोधन अर्क और गोधन अर्क भी लेती हूँ सुबह। मुझे डॉक्टर की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी,
गोधन अर्क और चंद्र प्रभावटी से ही मुझे आराम मिल गया। क्या बात है। अगली बहन को देना। ये गोधन अर्क पी लें, चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि ले लें, गोखरू की घनवटी को ट्राई घनवटी कहते हैं, वो ले लें। और करनाल हरियाणा से रहती हूँ, वैसे मैं यूएसए से आई हूँ। 4 साल पहले मेरे को अर्थराइट हो गया था वहाँ पे। डॉक्टरों ने मेरे को पेन किलर दे दिया और एक ट्यूब देते थे कि दर्द है तो दोनों पैरों पे लगाओ, और थोड़ी देर तो आराम रहता था, 2-3 घंटे के बाद दोबारा हो जाता था। धीरे धीरे 2 साल तक बढ़ता बढ़ता मेरी बैक में भी आ गया। फिर मैंने यूट्यूब पे आपका ये कर लो। हाँ, यूट्यूब चेक किया, यूट्यूब पे डाल के आपकी जो अर्थराइट का जो दवाइयाँ वगैरह थी, आसन वगैरह थे, वो किए। चंद्र प्रभावटी लेती थी, लक्ष्मी रस और पीड़ानील और वाताहारी चूर्ण मैंने ऑनलाइन मंगवाया, और मेथी दाना स्प्राउट करके खाती थी। उसको उससे बहुत लाभ हुआ। नहीं अदरवाइज डॉक्टर ने बोल दिया था कि ग्रोसरी का बैग नहीं उठाना, ऊपर पैडिया नहीं चढ़ना, पानी की बाल्टी नहीं उठाना। तो मैं डर गई कि मेरी पूरी ज़िंदगी तो नरक हो जाएगी, मैं करूँगी क्या। अब मैं आराम से 2-2.5 घंटे आपके वहाँ भी आसन ऐसे करके बैठी हूँ, यहाँ भी बैठी हूँ, शाम को भी 1.5 घंटा करती हूँ। सिर्फ यूट्यूब पे देख के थोड़ा सा खाने पीने का जो प्रिकॉशन था, गोभी वगैरह, वो जरूरी है। हाँ, और वहाँ तो डॉक्टर बोलते हैं कि कोई परहेज नहीं है, कुछ भी खाओ, लाइफ टाइम पेन किलर लो और खाओ, दर्द बढ़ाओ और उनका बिजनेस बढ़ाओ। वही ना, धीरे धीरे एक पैर में हुआ, फिर दूसरे में हुआ, फिर मेरी बैक में हुआ, फिर मेरी शोल्डर और मेरी उंगलियां, जैसे मैं रात को सोती थी तो मेरे हाथ पैर अकड़ने लग गए थे, घुटने में जैसे लोक लग जाता है, कुछ ऐसे फील होने लग गया था। तो फिर मैंने अब तो 4-5 महीने से या 6 महीने से कोई टैबलेट तो मैंने ली ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ली। कोई पेन किलर नहीं लिया। पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल, ये तो एलोपैथी की जन्मभूमि से आई हुई है, अमेरिका से। वहाँ तो अब भारत वाले इतने बेवकूफ़ हैं कुछ लोग कि ये दवाई अमेरिका में बनी। अरे अमेरिका थारा फुफ्फा लग गए। नहीं, उन डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है डॉक्टर स्वामी जी। मेरा MRI वगैरह सब कुछ हुआ है, उन्होंने सिर्फ पेन किलर के अलावा उनके पास अर्थराइट का कुछ भी नहीं है। ये वहाँ वाली बता रही है कि वहाँ कुछ नहीं है। हाँ, नहीं है। और यहाँ वाले उनसे ऐसे चिपके हुए हैं जैसे अमेरिका ही उनका खुदा हो, भगवान हो, सारे देवी देवता वहीं रहते हैं। स्वामी जी, YouTube पे देख के मैं इतनी हुई हूँ कि मैं 100 कदम गिन के नहीं चल सकती थी। अब तो तू दौड़ेगी जी। आगे प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो। ये सूक्ष्म है, गर्दन के भी आराम से लंबे श्वास। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मेरा नाम संगीता खोबरागड़े है, मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरे पूरे पेन में, मतलब जॉइंट में पेन रहता था, और मेरी उंगलियां जो थी मतलब मुश्किल से इतना मोड़ पाती थी। उसके बाद में दवाइयाँ भी, कुछ एलोपैथी दवाइयाँ खाई, कुछ फायदा नहीं हुआ। बीच में फिर मेरा कमर दर्द मतलब उठ गया अचानक। इतना कमर दर्द हुआ कि मतलब मैं लेटी ही रहती थी, मुझको बाथरूम तक पकड़ कर ले जाते थे। कुछ एलोपैथी की दवाइयाँ खाई, फिर मैंने प्राणायाम वगैरह किया, उससे मुझको काफ़ी राहत मिलते गया। अभी बीच में मतलब कोरोना काल में मेरे पैर जो थे, मैं बटरफ्लाई, बस इतना ही बटरफ्लाई कर पाती थी, नीचे भी नहीं बैठती थी। मैं 3 सालों तक के नीचे नहीं बैठी, केवल चेयर में बैठे रहती थी, चेयर में ही बैठ के खाना खाना। इतना ज़्यादा दर्द था? इतना ज़्यादा दर्द होता था, अब नीचे बैठ ही नहीं पाती थी। लेकिन अब मैं नीचे आराम से बैठ जाती हूँ। बटरफ्लाई भी मैं देखिए इतना कर लेती हूँ अब। इस प्रकार से मेरे पैरों में, यहाँ पे जॉइंट में इतना पेन होता था कि मैं 1 सेकंड भी वज्रासन में नहीं बैठ पाती थी। लेकिन आज मेरी स्थिति यहाँ आने के बाद इतनी हो गई है कि मैं आराम से 10 मिनट 15 मिनट तक बैठ लेती हूँ, पूरा वज्रासन कर लेती हूँ। मेरे कंधों में दर्द रहता था, इधर जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होता था कि मेरा हाथ पूरा ऐसा उठता नहीं था, इतना बस रहता था। अब मैं पूरा ऐसा उठा लेती हूँ और इस तरह से पीछे करके मुखासन भी कर लेती हूँ आराम से। अगली बहन को देना। अब कितना ही भयंकर दर्द हो, कमर दर्द भी पूरा अच्छे से ठीक हो गया है। कमर दर्द हो, घुटने का दर्द हो, जो खत्म हो गया ये है। सारे दर्दों की फैमिली एक ही है, बीमारियों की भी फैमिली है। पहले तो आदमियों की फैमिली की बात करनी पड़ती थी, अब बीमारियों की फैमिली हो गई। जी ओम स्वामी जी। मैं मंगला देशपांडे औरंगाबाद से। और मेरा 15-16 साल पहले अर्थराइटिस की पूरी ट्रीटमेंट हो चुकी थी, फिर भी मेरा पैर ऐसा स्टिफ था, मैं एक पावर भी पीछे नहीं रख सकती थी, कहीं भी कुछ भी हो। मगर उसके बाद एक दिन औरंगाबाद में मिलिंद दादा शुक्ल का 1 महीना का प्रशिक्षण शुरू हो गया। मैं वहाँ गई, मैं नीचे बैठ सकती भी नहीं थी, उठा के बिठाना पड़ता था मुझे। फिर एक दिन उनको बोली मैं छोड़ देती, मैं नीचे बैठ नहीं सकती तो मैं क्या करूँ। तो वो बोले नहीं छोड़ने का, तुम ठीक हो गो। मैं करने लगी। 1 महीना प्रोग्राम था, 27 दिन मेरा पैर मुड़ने लगा,
मैं सुखासन में बैठने लगी। मैं इतनी आनंदी हो गई कि तब से मैंने योग को छोड़ा नहीं। मैं योग सीखती भी हूँ, अनेक परीक्षा देती हूँ और योग सिखाती हूँ। मेरा स्थायी कक्ष तब से शुरू है, 15 साल से, आपकी कृपा से स्वामी जी। अब ये पूरे परिवार को और पूरे गांव को, औरंगाबाद बहुत बड़ा शहर है महाराष्ट्र का, उसको योगी बना दिया इसने। बैठी बैठी बोल दो, कोई बात नहीं। हाँ, अब तो खड़ी होने लग गई। ओम करो स्वामी कपाल जी। भाती, अनुलोम विलोम कर लो अब 15-15 मिनट। ओम स्वामी जी, मैं ललित भोपाल से आई हूँ, मेरा नाम ललित है। तो मेरे को कमर में दर्द 20-25 सालों से था ऐसा। तो एक बार मैं डॉक्टर को दिखाने गई, डॉक्टर मिले नहीं मुझे, तो मैं घर आ गई। मेरी कमर में बहुत दर्द था, बैठ नहीं पाती थी मैं। तो मैंने सोचा कि वो भी 3 टाइम की दवाई देंगे यानी कि, तो मैंने सोचा कि 3 टाइम योग करो। तो मैंने 3 टाइम यानी कि योग अच्छा हुआ, डॉक्टर नहीं मिला तो ललित का सौभाग्य जागे। तो 3 टाइम मैंने आसन करके उस समय, और फिर कमर दर्द को ठीक किया, योगा से ही ठीक किया। और ये कलाइयाँ मेरी ऐसे बहुत दर्द करती थी, बहुत ज़्यादा करती थी, ये 15-20 साल पहले ही यानी कि बहुत। तो ये तो सब योगा से सभी मतलब ठीक हो गई है। क्या बात है। घुटने का दर्द वगैरह भी मैं भगवान करे सभी डॉक्टर किसी को ना मिले। योगा से। बाकी मेरे बच्चे भी डॉक्टर हैं स्वामी जी। मेरे बेटा बेटी दोनों डॉक्टर। अब वो तो योगी हो गए होंगे, योगी डॉक्टर मिले तो अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छे बेटा बेटी दोनों मतलब देखो, ईमानदार डॉक्टर हैं स्वामी जी। तो बहुत मजाक कर रहे हैं अब तो। अगले को देते। प्रणाम स्वामी जी। अब ललित को डॉक्टर नहीं मिला, इनने सोचा अब जो योग कर ले, जब वो 3 टाइम दवाई देगा उससे अच्छा 3 टाइम योग ही कर ले। जी पास में। हाँ, गाजियाबाद से आई हूँ। सबसे पहले मुझे 98 में सर्वाइकल था। मैं बैंक एम्प्लॉय थी। मैं काउंटर पे बैठ के सारे दिन, फिर रात को थेरेपीज करा के शाम को फिर घर जाती थी। मैंने, मेरे फादर ला ने मुझे बोला आस्था चैनल पर ये देखिए आपका प्रोग्राम। मैंने आपको फॉलो किया, मेरा सर्वाइकल सही किया और सबको बताया। फिर थेरेपीज पे देने की ज़रूरत नहीं है, यही करिए, योगा करिए। उससे मैं फ्री में बिल्कुल सही हो गया मेरा सर्वाइकल। 2004 में मेरे को अर्थराइटिस हुआ, वो भी मैंने हल्दी मेथी सौंठ और सारी वादी की चीज़ छोड़कर वो भी मैंने सही किया। हाँ, बाय वादी की चीज़ तो छोड़नी पड़ेगी। वो सारा लालच छोड़ दिया। अब मैं ओबेसिटी और माइग्रेन, नी पेन के लिए, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए यहाँ आई हूँ, इस और आपका आशीर्वाद लेने। चलो, बहुत आशीर्वाद। ओम स्वामी जी। ओम माता जी। मैं चित्तौड़ से आई हूँ, राजस्थान। मेरा नाम शांता कुंवर है। मेरे कमर बहुत दुखती थी, दोनों पैरों में मेरी साइटिका है। आपने बताया वो कायफर और सरसों का तेल, उसकी मालिश करके मेरे थोड़ा आराम है। हाँ। और मेरे सिर बहुत दुखता था। मैं 25 साल की थी तब से दुखता था, तो मेरे 35 साल की हुई तो इतने दुखता था। तो आपका योग कर करके मेरा सिर दर्द। कहाँ से आई अम्मा? मैं चित्तौड़ से आई हूँ। चित्तौड़ से आई अम्मा, देखो। हाँ। और जो बचपन से सिर दर्द दुखा करता, इतना दुखता था कि मैं सो ही रहती थी। ये राम। तो योग करके मेरा सिर दर्द सही हो गया। शुरू शुरू में तो कहते होंगे कि देखो बुढ़ी योग करा है। गाँव में ऐसे बोलते हैं। नहीं, तो मैं 25 साल की थी तब से। हाँ, नहीं मतलब शुरू में मतलब बड़े उम्र के योग करे ना, बोले तो जवान लड़के लड़कियों में आई थी आपके सिविल में। अच्छा। हाँ। चलो, तब से योग कर रही हूँ। अगली जीजी को देना। तब से कर रही हूँ मैं। बहुत बहुत प्रणाम माँ। ओम स्वामी जी। मैं राजस्थान चित्तौड़ से आई हूँ, दौलत कंवर नाम है मेरा। मैं इनकी बहू हूँ इनकी। सास बहू दोनों आई हैं, ठीक है, बढ़िया। दोनों योग करेंगे तो सास बहू को सीरियल को नहीं होगा घर में। स्वामी जी, हमारे और ज़्यादा रुकने की इच्छा है, पर हमारे पापा को अल्सर की वजह से 2 दिन से ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो वो अभी वहीं है टेंट हाउस, वहाँ टेंट में रुके हुए हैं, तो आ नहीं पा रहे हैं। अरे अल्सर है तो उनको मोती पिष्टी खिला दो, तुरंत फायदा हो जाएगा जी। उनको अब आप सजेस्ट कराएं ऐसे, तो हमारे रुकने की इच्छा है। अरे तुरंत कराएंगे, अल्सर तुरंत ठीक करेंगे। आप कल हमारा जाना है, पर हमें रुकने की इच्छा ना। है। रुक जाओ, तो अल्सर वास्ते दवाई दे देंगे, अल्सर भी ठीक करेंगे, उन्हें शिफ्ट कर देंगे। ज्यादा तकलीफ है जी। हाँ, तकलीफ ज्यादा है, 2 दिन से वो तकलीफ में ज्यादा है, इसलिए हमारा कल जाना है। अब हमारी इच्छा हो रही है हम चले जाएं, वो तकलीफ सहन नहीं हो रही उनसे। ना, ठीक करेंगे, अल्सर ठीक कर देंगे। जी जी, ठीक। और मेरी भी कमर सही है और हड्डी में दर्द सही है। तुम सासू और बहू दोनों मोटी मोटी क्यों? हाँ।
मोटे हैं। राजस्थान में एक तो दाल बाटी चूरमा घी दूध घणो खावे हाँ। तो थोड़ा घी दूध और घी थोड़ा कम खाना। हाँ, थोड़े दिन उबला उबला जैसे खिलाते हैं ना यहाँ, थोड़ा यहाँ वाली डाइट फॉलो करना तो सांस मुंह सब पतले हो जाएंगे। हाँ स्वामी जी, मैं 14 तारीख को आई थी और मैं लखनऊ तहसील प्रभारी हूँ उत्तर की, और मैंने पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गई इस समय। 3 दिन से जो है 3 साल से जो योग के क्लासेस छूट गए, ये हम लोगों के लिए बड़े प्रॉब्लम हो गए। ऑनलाइन कोई क्लासेस नहीं लेता तो हमारे अर्थराइटिस हो गई है, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हमने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, हम योगराम ही जाएंगे। को मिल नहीं रहा था, सबने मना किया कि जाड़ा बहुत है इस समय मत जाओ, अर्थराइटिस और बढ़ेगी। लेकिन हमने कहा नहीं, वहीं हम जाएंगे तभी हम ठीक होंगे। हम बड़ी आशा लेके सर आपके पास आए हैं और हम जानते हैं हम ठीक जरूर हो जाएंगे। हम अपनी बेटी को भिलाएं, दामाद को भिलाएं। सारी धरती ठीक हो रही है, तू भी ठीक होगी अम्मा। हाँ ओम स्वामी जी प्रणाम। बड़ी कमजोर सी लग रही है जी। मैं 40 की थी जब भर्ती हुई हूँ 5 तारीख को, और 38-39 चल रहा। हाँ, वजन भी कम है जी। और क्या क्या तकलीफ? तकलीफ पहले पैर में ही था काफी दिन से। ये अर्थराइटिस से वेट भी कम होता है, हीमोग्लोबिन भी कम होता है। अंग्रेजी दवा बहुत कम खाती थी, नस नस में जकड़न, मैं नीचे बैठ नहीं पाती हूँ ज़्यादा। तो मतलब बाथरूम के लिए भी मैं स्टूल पर बैठ कर किसी तरह से काम करा। और ये होम्योपैथिक दवा ज़्यादा खाई हूँ, और एक होम्योपैथिक दवा के पास गए थे तो वहाँ मैं पहले अर्थराइटिस हो गया था 98-99 में, तो वहाँ ठीक हो गया है। वो बोले कि मैं अर्थराइटिस की दवा बंद कर दी थी, उसकी थायराइड की दवा बंद कर दी थी। तो बोले कि नहीं, अब थायराइड की दवा कभी बंद मत करना, 25 mg का ही खाते रहो। लेकिन हमने कहा कि आप होम्योपैथिक में देंगे, तो बोले कि नहीं, होम्योपैथिक में बहुत मामूली सा होता है असर उसका, इसलिए तुम अंग्रेजी वाला भी खाया करो। तो लेकिन इस समय तो मेरा वो थायराइड ठीक है काफ़ी दिन से। अब ये ऐसी बातें करते हैं मूर्ख लोग। बीपी की दवा, शुगर की दवा, थायराइड की दवा, अर्थराइटिस की दवा, हड्डी गल के निकल बह जाएगी। कभी दवा बंद मत करना। अब तेरी सारी दवाएं बंद करेंगे और तेरे को ठीक करेंगे, वजन भी बढ़ जाएगा। थायराइड तो ठीक है। अभी खजूर खाया कर, ये सब दर्द बहुत है। खजूर खाया कर अम्मा, खजूर कल्प करना तेरे को। अच्छा। जिनको भी अर्थराइटिस है, खजूर खाने से 2 चीजें बढ़ती है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, और जिनका वेट कम हो जाता है ना, ऐसे तुम भी खजूर खाना बेटा, खजूर कल्प पे रहो तुम। दोनों बेटियों के लिए बोल दूध वगैरह ले सकती हूँ ना? दूध नहीं, अभी दूध से थोड़ा दर्द बढ़ जाएगा। गाय का दूध पी सकते हो 1 गिलास, लेकिन यहाँ आपको खजूर खिलाएंगे। खजूर कल्प कराते हैं अर्थराइटिस वालों को, उससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है, और जिनका वेट कम होता है वेट भी बढ़ जाता है। जी करते हैं व्यायाम वगैरह सब, ये जो इलाज हो रहा है उससे तो ठीक हो रहा था। अब पीछे दे दो, फिर उभर जाता। ना नहीं उभरेगा। एसिड बहुत ज्यादा है तो, और अर्थराइटिस भी है तो एलोवेरा रोज पीना। एलोवेरा से एसिडिटी भी खत्म हो जाती है और अर्थराइटिस भी खत्म हो जाती है। जी बहन, हाँ बोल। ओम स्वामी जी, मैं देहरादून से मुन्नी वैष्णव, मैं देहरादून की जिला प्रभारी हूँ, और सीमा जी ने हमें यहाँ पे वो भेजा है। मुझे जेनेटिक अर्थराइटिस था, तो हाँ, मैं योग और आयुर्वेद की जो काढ़ा पीते हैं उससे मैं काफ़ी रिलीव किया अपने आप को। और यहाँ पे आके मुझे अर्थराइटिस की बस्ती और पीड़ांतक तेल से मसाज की गई, उसमें मुझे बहुत आराम है। ओम स्वामी जी प्रणाम। ओम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि से नमन वंदन प्रणाम। स्वामी जी, मैं कुसुम रायपुर देहरादून से आई हूँ। श्रीमती सीमा जौहर जी ने हमें भेजा है उपचार कराने के लिए। स्वामी जी, मेरे को करीबन 15-20 साल से जेनेटिक ऑर्थराइटिस है। मैं साथ साथ योग भी कर रही हूँ और दवाओं का प्रयोग कर रही हूँ घर ही से। एलोपैथिक का तो यूज़ करना मेरे को लिए, कभी मैं पहले खा भी लेती थी तो ठीक होने की जगह मेरी और भी तबीयत खराब हो जाती थी। उसके बाद मैंने बिल्कुल प्रण कर लिया कि मैं एलोपैथिक दवाई बिल्कुल नहीं खाऊंगी। इसी के बीच में स्वामी जी मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद मेरा डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। 10 दिन तक मैं पूरे रात दिन नहीं सोई। उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को जो है सेकंड ऑपरेशन किया, तारें वगैरह डाली उसने जो है। उसके बाद 6 महीने बाद मेरा जब तारें निकली तो पता लगा कि मेरा जो पैर जो हड्डी जो है गला जुड़ गई है। तब से आज तक स्वामी जी मेरे को उस पैर में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है उठने बैठने में। बाकी मैं आपकी पूरी दवाई हैं आयुर्वेद की पूरे घर में। मेरा बेटा भी फॉरेन में रहता है, उसको भी मैं यहीं से दवाइयाँ भेजती हूँ। उसको भी साइनस की प्रॉब्लम है। मुझे बहुत बहुत आराम हुआ स्वामी जी। आपके चरणों में कोटि से नमन प्रणाम। अगले बहन को देना।
ओम स्वामी जी। ओम। मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से आई हूँ, ब्रह्मपुरी से। मुझे 2011 से रूमेटॉइड आर्थराइटिस था और इतना परेशानी थी स्वामी जी कि मैं चल भी नहीं पाती थी। पूरा ये हमारे जबड़े भी लग जाते थे। मैं हाँ, पानी ये भी दर्द नहीं- ना जबड़ों को भी जकड़ लेता है। मैं पानी भी नहीं पी पाती थी और इतना दर्द था कि मैंने एक बार सुसाइड का भी ये किया था ये स्वामी राम। जी। कि भाई फिर- जीने से तो मर जाना अच्छा है, ऐसे आदमी दुखी हो जाता है। मेरे 2 हाथ भी टेढ़े हो गए स्वामी जी यहाँ से, अरे राम। दोनों भी हाथ। तो अभी 50% थोड़े सीधे हो गए हैं। अब तेरा 100% सीधा करके भेजना यहाँ से। हाँ, क्या नाम बेटा तुम्हारा? नैना। नैना। हाँ जी। फिर अब अभी क्या? स्वामी जी मुझे हार्ट का भी ये हुआ था 2-3 महीने पहले। तो अभी हार्ट भी मतलब मैं सांस भी दम घुटता था मेरा थोड़ा। तो अभी मैं बहुत दौड़ सकती हूँ स्वामी जी। और मेरी हीमोग्लोबिन भी 9 से 9-10 तक रहती थी। अभी मेरी हीमोग्लोबिन 13 हो गई है 3 दिन में। और स्वामी जी मेरा वजन भी 3 किलो कम हो गया है। हाँ, किसी का कम करना है, किसी का कम है उसका बढ़ाना है। मेरा 64 था, अभी 61 हो गया है। ठीक है नैना, बहुत आशीर्वाद। अगली को देना। अनुलोम विलोम कर लो अब थोड़ी देर लास्ट। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी मुझे स्टिफनेस फील हो रही थी 1 साल से। जैसे मैं सुबह उठती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि बॉडी ढंग से मैं चल नहीं पा रही, थोड़ा हैवीनेस स्टिफनेस सी लगती थी। तो बाबा जी मैंने घिया का सूप आप जो कहते हैं, जूस नहीं? हाँ जी, जूस नहीं, आपने मना अर्थराइटिस किया वालों था। को जूस नहीं पीना। हाँ जी। तो कुछ टाइम मैंने घिया जूस लिया था, जैसे सब कहते थे घिया अच्छा होता है, बट आपसे जैसे सुना क्लियर हो गया कि अभी मुझे सूप लेना है। तो घिया सूप लिया मैंने। और वो जो आप लहसुन बताते हैं ना, पहली ग्रास के साथ त्रिकुटा और सेंधा नमक के साथ, वो 2 चीज़ें ही ली। और मुझे उसके साथ योगा तो मैं करती हूँ, बस थोड़ा रेगुलर नहीं थी, तो शायद ये प्रॉब्लम हो गई। तो फिर मेरे को बिल्कुल लहसुन और लौकी के सूप से ठीक हाँ होगी। जी, पहली ग्रास ही वही ले लेती हूँ। हाँ जी। लहसुन पहले ग्रास के साथ हाँ थोड़ा जी। 1-2 चम्मच गाय का घी लेके, हाँ जी, और ऐसे। उसमें त्रिकुटा सेंधा नमक डाल के ले लो। हाँ जी, थैंक यू बाबा जी। अर्थराइटिस ठीक हो जाता है। अगली को देना। लेकिन जिनको एसिडिटी है वो मत लेना उनको एलोवेरा जूस ही पीना है। स्वामी जी, एसिडिटी मैं भद्रक से हूँ। मैं बहुत एलोपैथी मेडिसिन खाई हूँ, मेरा आराम अभी 4 दिन में मेडिसिन नहीं खा रही हूँ, मेरा आराम बहुत लग रहा है। कहाँ से आई है? भद्रक से। भद्रक से, उड़ीसा से जी। हेलो, 4 ही दिन में आराम लग रहा है। 4 दिन में अब तेरे को अच्छा वजन भी लग रहा कम है। करना है और वजन थोड़ा हल्का लग रहा है स्वामी जी। और कम हो जाएगा। चलो आशीर्वाद अगली को देना। ओम स्वामी जी। हो। मैं तो आपसे 16 साल पहले से मिलना चाह रही थी। मैं 2 साल पहले भी यहाँ आई थी, उस टाइम आप शायद यहाँ नहीं थे। और मैं 2 साल पहले, हाँ 3 साल पहले नहीं था, 2 साल से आया हूँ इधर। 3 साल पहले। और आज पता नहीं परम पिता परमात्मा की क्या कृपा हुई। एक तरफ कृपा हुई, दूसरी तरफ मेरे श्राप हुआ कि मैं आज आपसे मिल गई हूँ। कृपा क्या हुई और श्राप क्या मिल गया? अर्थराइटिस के उससे तो थोड़ा सा था, वो छोटा बड़ा मैं कर लेती हूँ। आपके प्रोग्राम और वो यूट्यूब पे देख करके वो सब छोटी बड़ी बीमारी पेट की सब कर लेती हूँ। लेकिन इस टाइम अचानक मुझे क्या हो गया कि मेरे, इसी में बता दूँ, कोई नहीं, बाद में बता देना। लेफ्ट ब्रेस्ट में जो है गांठ निकली है। और गांठ निकली तो वो भी ठीक करेंगे? तो वो आज 1 महीने से हम टेस्ट कराते कराते देहरादून में, मैं चमोली से आई हूँ, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। चल मैं तेरे को बताता हूँ। जी। देखो ये कोई ऐसे लुका छुपी की बात नहीं है, कि ये कोई श्राप नहीं है। जो हो गया, कई कारण होते हैं, हमको भी नहीं पता अभी तक, सारी मेडिकल साइंस को भी नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं इससे होता उससे होता है। हो सकता है, 1 मिनट, हो सकता है दूध रुका हो, क्योंकि हम गवर्नमेंट जॉब, बच्चा घर पे रहता था, जो भी मैं कारण शाम रहा आती हो, थी। तेरी गांठ ठीक कर देंगे। मेरी बेटी पड़ी हुई है, उसको बुखार आ गया परसों रात, वो गेट से अंदर नहीं आ पाई, आरटीपीसीआर नहीं था। मेरा तो हॉस्पिटल ऑपरेशन होना था 14 तारीख को। आरटीपीसीआर करके मैं हॉस्पिटल जॉलीग्रांट गई। मैं, उसने बोला मम्मी तो पार्किंग पे बैठे रहा, और वो गई अकेले। 20 साल की लड़की है, अभी 2-4 महीने पहले गाड़ी चलानी सीखी है, और गाड़ी भी ली उसने ज़बरदस्ती करके। मुझे, हमारी प्रॉब्लम है, और नहीं है परिवार में, 2 हैं बस, मम्मी और बेटी। पापा उसके 16 साल पहले एक्सपायर हो गए। और तेरे को ठीक कर देंगे। जॉलीग्रांट में जैसे ही उसने बोला मम्मी मैं सब पता करके फिर लास्ट में बुलाऊंगी तुमको, क्योंकि एंजाइटी हो जा रही थी, मुझे बीपी हो जा रहा था। डॉक्टर ने बोला बीपी हाई होगा तो ऑपरेशन नहीं होगा। वहाँ गए तो
सारे डॉक्टर पॉजिटिव। चलो फिर क्या करती, फिर मैंने बोला बेटा चल सीधे घर भी नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे कपड़े लगते 10-12 दिन के लिए हम घर से निकले हुए थे। वैसे ही गाड़ी में हमारा डेली सुबह 5 बजे से नाश्ता वास्ता बना के कपड़े उपड़े सब दिन भर गाड़ी में ही रहते थे हम 1 महीने से, और शाम पहुँचते थे घर। अब मैंने बोला बेटा चल सीधे वहाँ चलते हैं। फिर यहाँ पे किसी नंबर था पहले से, उनको मैंने कहा मैं आ रही हूँ गेट पे, बस जैसे भी मैं आ रही हूँ उनने बोला आ जाओ आरटीपीसीआर है, उन्होंने बोला देख लेंगे। मेरा था, लड़की का नहीं था। फिर लड़की बाहर रही, वो कोई पंचकर्मा वाली लेगी अपने घर उसको। चलो अब कोई नहीं, तेरे को ठीक कर देंगे। वो मिलेगी आपसे, वो रिश्तेदार, और वो नहीं मिल रही है, वो नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं ऑपरेशन करेंगे। मिला देंगे, कराएंगे, ठीक है। आप मनवा देंगे, सबको मनवा देंगे। कब मिलेगी लड़की? आज ही मिलेंगी, ठीक। आप मिल दीजिए प्लीज। स्वामी रीते आ भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम પછી ભ્રામરી ઉદ્ગીત અને સૂક્ષ્મ આમ આટલું જ કરવાથી તમે મોટા રોગોને મટાડી શકો છો। અને આવું બધું સાંભળીને લોકોને ઉત્સાહ મળે અને પછી એના આમ થાય કે આ બધાના રોગ મટી રહ્યા છે તો હું પણ યોગ કરીશ તો મારા પણ રોગ મટશે।